Hello everyone. So ये mock test. Let's start with physics. So पहला question we have the ratio of minimum to maximum wavelength in Balmer series of hydrogen atom. So हमको wave number 1 by lambda का फॉर्मूला पता है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर. राइट, यहाँ पे n1 है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है एंड n2 इज जहाँ से वो आता है. So minimum wavelength means maximum energy, so it will come from infinity to Balmer series बोल रहा है, इसीलिए n1 का वैल्यू will be 2 and for maximum wavelength minimum energy होगा, so that means it will come from n equal to 3. In that case, so पहला वाला अगर हम minimum energy का लिखे 1 by lambda will be r into 1 by Balmer series है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 by infinity से आएगा, that will be 0, so lambda becomes 4 upon r. And for maximum wavelength अगर दोबारा लिखें same equation, 1 by lambda is r into 1 by 4 upon 1 by n equal to 3 से आएगा, so 9. So this will give me 5r upon 36, which means lambda will be 36 upon 5r. और इन दोनों का रेशियो मुझे मिल जाएगा, lambda 1 is to lambda 2 will be 4 upon r, that is equal to 36 upon 5r, so 5 upon 9. So first option is our answer. Next again same question है, 5 upon 9. Yeah, then ionization energy of helium plus ion at minimum energy position. Ionization energy जो है that will be that will be negative of total energy. तो total energy का फॉर्मूला हमको पता है कि -13.6 z square upon n square, where z is the atomic number and n is the orbit number या shell का number. तो minimum energy position obviously n equal to 1, n square हो गया 1, and z का value will be 2 because it is helium. So energy हमको मिल गया -13.6 into 2 का square 4, which gives me 24 to 54 -54 upon 4, sorry -54.4 electron volts. अब इसका negative energy will be ionization energy, so plus 54.4. Next, yeah, a man weighing 60 kg standing on a trolley is resting on frictionless horizontal rails, starts walking. Okay, 4 second displacement related to the ground. इसमें अगर हम देखें तो initially the center of mass was at rest, so the system will try to maintain that condition where center of mass remains at rest, which means जब man, suppose the man अगर वो right side की तरफ चलता है with 1 meter per second का velocity, तो क्योंकि frictionless rail है, the trolley will go to the left with some velocity v. Same velocity man का भी उसी तरफ जाएगा, एक component जाएगा left side की तरफ, यानी कि दोनों राइट साइड वाला मोमेंटम एंड लेफ्ट साइड वाला मोमेंटम अगर हम इक्वेट कर दें तो हमको v का वैल्यू मिल जाएगा. मतलब मैन का हो गया मोमेंटम ऑफ मैन विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द टोटल सिस्टम. मोमेंटम ऑफ मैन हो गया 60 into 1 meter per second वाला, एंड सिस्टम का हो जाएगा 60 plus 240 into v, which gives me v equal to 60 upon 300, that is 1 by 5 या 0.2 meter per second. अब अगर रिलेटिव टू द ग्राउंड देखें मैन के रेस्पेक्ट पे, तो राइट साइड की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड जाता है एंड लेफ्ट साइड की तरफ 0.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब नेट वेलोसिटी उसका हो जाता है 0.8 मीटर पर सेकेंड ऑन द राइट साइड. वेलोसिटी मिल गया, टाइम दिया हुआ है 4 seconds, so displacement will be velocity multiplied with time, which gives me 0.8 into 4, that is 3.2 meters. Third option.
So next is ball impinges directly on a similar ball at rest. Coefficient of restitution. Yeah, sure. So दोनों similar balls हैं तो उनका mass will be equal. So I'll write m1 equal to m2, that is equal to some value m. First ball का अगर मैं initial speed लिखूं u1 equal to some value u suppose, and u2 will be 0 because the second ball was at rest. After the impact, v1 becomes 0 and v2 का कुछ value आता है which we don't know, right? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. u2 क्योंकि 0 है, then that component will be 0 and I will be left with half mu square. Final kinetic energy will be half m1 v1 square plus half m2 v2 square. v1 यहाँ पे क्योंकि 0 है, then that component becomes 0 and हमको बच जाता है half m v2 का स्क्वायर. अब क्वेश्चन बोलता है कि हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग इज हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो मुझे मिल गया हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इनटू हाफ एम यू स्क्वायर. यहाँ से हमको मिलता है वी टू इक्वल टू यू अपॉन रूट टू. फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला हमको पता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. v2 का वैल्यू आया u बाई रूट टू माइनस v1 वॉज 0, u1 है u एंड u2 अगेन 0. तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बन गया 1 अपॉन रूट टू. तो थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट है व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार. ओके, तो दिस इज अगेन इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये. हमको क्या पता है, म्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी. हमको वी का वैल्यू निकालना है, तो वी बिकम्स रूट अंडर म्यू आर जी, दैट इज रूट अंडर म्यू का वैल्यू है 0.4, आर का वैल्यू है 30 मीटर्स, जी का वैल्यू वी टेक स्टैंडर्ड 10, तो रह जाता है रूट अंडर 120 और we have 2 root 30. 2 root 30 का वैल्यू आएगा नियरली 10 पॉइंट समथिंग, 10.8 10.9 के करीब आएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन. ओके, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेट इज 2 seconds. मैग्नेटाइज्ड सच दैट पोल स्ट्रेंथ बिकम्स. ओके, सो मैग्नेट का हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, दैट इज 2 पाई इनटू रूट अंडर आई अपॉन एम बी, जहाँ पे आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड एम इज द पोल स्ट्रेंथ. तो यहाँ से हमको मिल गया क्या, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर ऑफ पोल स्ट्रेंथ. सो T1 by T2 will become root under M2 by M1. हमको T2 निकालना है, so T2 will become T1 into root under M1 upon M2. T1 है 2 seconds, root under M1 हमको कुछ M है and then M2 becomes 4 times, so that is 4M. तो ये 2 upon 2 हो गया 1 second. So the new time period will be 1 second. Here current passing through 1 ohm resistance is 0 EMF. सिंपल हम किरचॉफ का लूप लॉ लगा लेंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा प्लस 6 वोल्ट माइनस 1 ohm into the current through it, that is 0 plus EMF, sorry minus EMF E equal to 0, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे आ रहा है तो माइनस. तो यहाँ से EMF का वैल्यू मिल गया 6 वोल्ट्स. इजी वन. Circuit shown here is used to compare EMFs E1 and E2. अच्छा, E1 is more than E2. जब C में कनेक्ट होता है then it is E1, और अगर E2 होता है तो नल पॉइंट कहाँ होगा. श्योर. तो यहाँ पे जब यह पोटेंशियोमीटर वाला कंडीशन, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब E upon L will be constant, right? So E1 by L1 will be equal to E2 by L2.
हमको L2 निकालना है. L2 is E2 upon E1 multiplied with L1. L1 जो डिस्टेंस है दैट इज AC. ओके, तो पॉइंट A से पॉइंट C तक का जो डिस्टेंस है दैट इज L1. नेक्स्ट E2 अपॉन E1 जो आया हमको दिया गया है क्या, E1 is more than E2, so this fraction will be less than 1, so entirely L2 will be less than L1. मतलब हमारा न्यू पॉइंट जो आएगा दैट विल बी लेफ्ट टू C, टू द लेफ्ट ऑफ C. यस, छोटा हो जाएगा. LCR सर्किट है जिसमें वोल्टेजेस आर इक्वल इफ कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किट. ओके, सो क्या दिया गया है, velocity sorry potential difference across the resistance is equal to the potential difference across the capacitor which is equal to inductor. तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, R equal to XL equal to XC, ये वाला कंडीशन मिलता है. and this is 10 volts each. रिजल्टेंट या फिर नेट पोटेंशियल जो रहता है दैट इज रूट अंडर VR का स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं. दिस केस में 0, तो V टोटल बिकम्स 10 वोल्ट्स ओनली. नाउ जब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इम्पीडेंस में मेरे पास क्या बचेगा, दैट विल बी रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर ओनली. अब क्योंकि R was equal to XL in the previous condition, Z का वैल्यू क्या हो गया, √2R या फिर √2XL जो भी. करंट through that circuit is much V by R या V by Z, that is 10 upon √2R या 10 upon √2XL. Now voltage across inductor, again with current I will take I into XL. I मुझे मिला 10 upon √2R, XL का वैल्यू मैं R पुट करता हूँ, तो वोल्टेज मेरे पास रह जाता है कितना, 10 upon √2. Second option. Then here metal wire dragged across the gap between the poles. Okay, टाइम डिफरेंस दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज दिया हुआ है, EMF. बहुत इजी क्वेश्चन है. EMF is nothing but the change in flux divided by change in time. Change in flux दिया हुआ है 8 into 10 to the power minus 4 webers, and change in time दिया हुआ है 0.4 seconds, which gives me 2 into 10 to the power minus 3 volts. Fourth option. Next. ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB. इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कंडीशन पे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, राइट, एंड पोटेंशियल V इज गिवन बाय EdR या फिर dV इक्वल टू EdR, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसको जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ for point from A to B, A का पोजीशन है R, 2R हो जाएगा ये. This will give me VB minus VA equal to lambda by 2 pi epsilon naught, तो बाहर निकल गया. dr by R का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln R from R to 2R, that will give me lambda by 2 pi epsilon naught ln 2R upon R ln 2. So first option. Wait, sorry. This was VB by VA. So VA by VB पूछा है ना क्वेश्चन में. It will be negative of that, minus lambda by 2 pi epsilon naught ln 2. Second. So next 148. 3 capacitors, each of 4 microfarads connected in such a way effective capacitance is 6. Okay, so ये थोड़ा सा हम इमेजिन कर सकते हैं दिमाग में कि दो 4 माइक्रोफैरेड्स वाले कैपेसिटर्स को अगर मैं सीरीज में लगा लूं तो दैट विल गिव मी हाउ मच, 2 माइक्रोफैरेड्स, एंड उसको मैं पैरेलल में लगा दूं अगर एक और 4 के साथ, तो इट विल गिव मी नेट 6 माइक्रोफैरेड्स. तो मेरा टोटल
आ गया क्या, 2 in series and 1 in parallel. ओके, पीवी ग्राफ दिया हुआ है, वर्क डन. वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर द पीवी कर्व. एरिया अंडर द पीवी कर्व यहाँ पे एक ट्राइंगल, सो दैट इज हाफ इंटू बेस हो जाएगा 3v माइनस v इंटू हाइट हो जाएगा 4p माइनस p, which gives me 3pv 150. ओमेगा है अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी. ओके, object weighed at the equator gives the same reading as reading taken at depth d. Alright, so हमको लैटिट्यूड के रिलेटेड जो फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट, जी डैश इक्वल टू, या जी ऑन दैट लैटिट्यूड इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, राइट, कॉस लैम्डा, सॉरी. सो एट इक्वेटर लैम्डा इज 0 डिग्री, कॉस लैम्डा हो गया 1. So this gives me r g minus r omega square. Okay. Next हमको है depth d वाला. So at depth d the acceleration due to gravity is given by g into 1 minus d upon r, where d is the depth and r is the radius of earth. So this is equal to बोल रहा है same reading as reading taken है, okay, equator के साथ. तो g minus r omega square. अब सिंपली अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो g माइनस जी डी बाई आर इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर. ये कट गया, सिंपली रह गया मेरे पास जी डी बाई आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, जिसमें डी इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी. आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, फर्स्ट ऑप्शन. Yeah, two satellites of masses m and 9m are orbiting a planet. Okay, their frequency of revolution will be. So frequency क्या है? Inverse of time period. Time period satellite के mass पे depend नहीं करता. It depends only on the mass of the planet. तो क्योंकि time period satellite के mass पे depend नहीं करेगा, तो frequency भी depend नहीं करेगा. So it will be 1:1. थोड़ा conceptual था ये question. Next, two identical conducting rods are first connected independently but simultaneously. Okay, 100 degrees and 0 degrees में. Second में they are connected in series. Q1 and Q2 are the rate of melting. Sure. तो पहला वाला जो है इंडिपेंडेंट वाला जो कंडीशन बोला गया है, that is nothing but parallel connection. Parallel connection में अगर मैं रेजिस्टेंस R लिखूं उसका to the flow, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, रेजिस्टेंस R upon 2. मुझे फ्लो Q1 मिल गया. टेम्परेचर डिफरेंस 100 अपॉन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R by 2, तो 200 by R है मेरा Q1. नेक्स्ट Q2 है जिसमें इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज में जब कनेक्ट होगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा 2R, तो Q2 मेरा बन जाएगा 100 by 2R, which gives me 50 upon R. Q1 है 200 upon R and Q2 is 50 upon R. Q1 by Q2 will be 4:1. 4/1. ओके, ये तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है. 3pv इसका आया था आंसर. Vessel is filled with an ideal gas at a pressure and temperature. All right, half of mass is removed. देखो वेसल है तो the available volume for the gas remains same. तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है. चेंज क्या क्या हो रहा है, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर. तो हमको पता है P will be directly proportional to NT, क्योंकि PV equal to nRT है, V and R will be constant. तो यहाँ से P1 by P2 becomes N1 T1 by N2 T2. P2 will be P1 N2 T2 by N1 T1. Now P1 दिया हुआ है 10 एटमॉस्फेयर्स, N2 इज हाफ, क्योंकि आधा मास निकाल दिया गया, या फिर हम बोलें कि आधा हाफ नंबर ऑफ मोल्स वर रिमूव, so हाफ बचा, that is 1/2, मतलब N2 by N1 becomes 1/2, and T2 is 273 plus 87, which is 60, and T1 is 27 डिग्रीज में, मतलब 300 केल्विन.
तो बस हो गया, सॉल्व ऑलमोस्ट. दिस इज 5, 6 atmospheres. T2 becomes 6 atmospheres. The conductor is carrying a current I, magnetic field intensity. फॉर्मूला से करोगे. आर्क के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो पता है, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, दैट इज मल्टीप्लाइड विद थीटा व्हिच इज द एंगल ऑफ द आर्क. ये हमको पता है. नाउ अगर पहला आर्क देखें व्हिच इज नियरेस्ट टू द सेंटर, पहला आर्क, उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स. सेम होगा आखिरी वाले के लिए. जो बीच वाला आर्क है उसके लिए है परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स. और जो कनेक्टिंग वायर्स हैं दे पास डायरेक्टली थ्रू द पॉइंट, तो उनके वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी जीरो. वी विल ओनली कंसीडर फॉर द कर्व पोर्शन, राइट. तो बीच वाला माइनस होगा, ऊपर और नीचे वाला प्लस होगा. उससे हमको मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई. थीटा तो कांस्टेंट सबके लिए. फर्स्ट वाला 1 बाय आर माइनस 1 बाय डिस्टेंस एट 2r प्लस 1 बाय डिस्टेंस एट 3r, which gives me mu naught I theta by 4 pi. इसका एलसीएम हो गया 6r, 6 minus 3 plus 2. So 5 mu naught I theta upon 24 pi r. पहला ऑप्शन. करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल. देखो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, सो सेकंड वन इज रॉन्ग. फोर्थ वाला इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ऑफ जिसका चार्ज ज्यादा है उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा. तो सेकंड एंड फोर्थ आर रॉन्ग. टॉकिंग अबाउट दिस साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको क्या पता है, BQ अपॉन 2 पाई m, राइट. B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, Q इज द चार्ज अपॉन 2 पाई m, मास ऑफ दैट पार्टिकल. So it does not depend on the velocity or speed. So I'll go with option 3 here. It does not depend on the speed of charged particle. Okay, next. Body is thrown up with in a lift with a velocity of 5 meter per second relative to the lift. Time of flight is given. Acceleration. All right. So यहाँ पे एक relative acceleration है lift के साथ. So I will only talk about the relative components here. Time period of या time of flight जो है क्या रहता है 2u by g. So I will write it as 2u relative by g relative. This is given as 0.8 seconds. तो 2 into u relative दिया हुआ है 5 upon g relative, that is 0.8. तो g relative मेरा बन गया 10 upon 0.8 which is by 8, 25 upon 2, 12.5. Yeah. तो अब अगर मैं लिफ्ट की बात करूं तो नेचुरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे लगता है which is 10 मीटर पर सेकंड के लिए, एंड इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है. टोटल है 12.5, तो ऊपर की तरफ बचा कितना 2.5. थर्ड ऑप्शन. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, ये हमने शायद शुरू में किया हुआ था 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये अभी किए हैं 2.5. ओके. Particle is projected at an angle 60 degree with speed 10 meter per second. After some time, velocity makes 30 degree with horizontal. ये easy है. Simply हमको यहाँ पे याद रखना है कि horizontal component of velocity does not change. It remains constant. तो पहला horizontal component क्या है? U cos theta, which is U cos 60. वो equate होगा V cos 60 के, V cos 30 के साथ. That is the horizontal component of velocity at that instant. V cos 30. हमको V का वैल्यू निकालना है. V becomes U cos 60 upon cos 30. U का वैल्यू है 10. Cos 60 is how much? √3 by 2. Sorry, 1 by 2. And cos 30 is √3 by 2. So this becomes 10 by √3 meter per second. Fourth option. Neither dimension nor units. एंगल का डायमेंशन नहीं होता लेकिन यूनिट है हमारे पास, डिग्री, रेडियन, स्टेरेडियन. लुमिनस इंटेंसिटी तो दोनों होता है.
करंट का भी होता है। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट अ नंबर। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में जो है, जो हमको लगता है कि सबसे छोटा है, दैट बिकम सबसे बड़ा। तो ये एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। तो फर्स्ट ऑप्शन। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होता तो रिवर्स ऑर्डर बनता है इसका। पैकेट ऑफ वेट W ड्रॉप्ड his retardation equal to twice the acceleration of gravity. राइट, जब ये पैकेट ग्राउंड पे टच करता है एट दैट मोमेंट, इसका वेट तो नेचुरली नीचे W था ही। जब ये टच किया तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा, राइट। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रिटार्डेशन है 2g के इक्वल, विच विल बी अपवर्ड्स 2g। अगर मैं कहूँ कि मास इसका है m ऑफ दैट पैकेट, तो जो W दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट mg, राइट। अब यहाँ से सिंपली मैं इक्वेशन ऑफ फोर्सेस लिखूँ तो n माइनस W विल बी m इंटू 2g, या फिर 2mg हो जाएगा विच इज 2w। तो नॉर्मल रिएक्शन बन गया मेरा 2w प्लस w विच इज 3w। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल बी एक्सर्टेड टू द ग्राउंड, 3w। Yeah, so for 3 nuclei with mass number 3, 4 and 5, binding energy per nucleon दिया हुआ है। Mass number 3 combines with 5 to give 2 nuclei of mass number 4. Alright. See, per nucleon energy है for, अगर मैं लिखूं x is for the mass number 3, y is for mass number 4 and z is for mass number 5, तो 3 के लिए टोटल एनर्जी मेरा हो जाएगा कितना? 3 न्यूक्लियॉन्स है टोटल, 3 into 5.3 which gives me 15.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मास नंबर 4 वाले की बात करूं, y की बात करूं, तो इट विल बी 4 into 6.2, 24.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड मास नंबर 5 वाले का बात करूं तो 5 into 7.4 which gives me 37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब एक x कंबाइन करता है z के साथ टू गिव मी 2y, x कंबाइन कर रहा है मतलब 15.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कंबाइन कर रहा है विद z विद 37, so this is 9 to 52.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कंबाइन कर रहा है to give me 2 times of y, 2 times of 24.8, कितना हो गया 6, 9, 49.6। जो डिफरेंस अमाउंट है वो है या तो एनर्जी रिलीज या तो एनर्जी एब्जॉर्ब। डिफरेंस अमाउंट मेरा बचा 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एज इट इज पॉजिटिव आई विल टेक इट इज एब्जॉर्ब्ड। 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। Total energy of a simple harmonic oscillator is E. Potential energy halfway through its endpoint. Okay. Total energy क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में? हाफ के ए स्क्वायर, इसका वैल्यू है E। हमको पूछ रहा है हाफ के एक्स स्क्वायर का वैल्यू, वेयर x इज इक्वल टू a बाई 2। हाफ वे थ्रू इट्स एंड पॉइंट ना, 0 से a के बीच में है वो, a बाई 2 में। तो दिस इज हाफ के a बाई 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 4, मतलब हाफ के a स्क्वायर बाई 4, e बाई 4, 1/4 of a। For simple harmonic oscillator, potential energy is equal to kinetic energy. Potential energy है हाफ के x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से मुझे मिला 2x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, या x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन रूट 2। तो यहाँ पे आया x इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ a बाई रूट 2। एक साइड जाएगा, सपोज राइट साइड जा रहा है, प्लस a बाई 2 एक बार क्रॉस किया, दोबारा आया, फिर लेफ्ट साइड में माइनस वाले को भी 2 बार क्रॉस किया। So it will be crossing 4 times during each cycle oscillation, right? 167. Assume that lamp radiates power P uniformly in all directions. Magnitude of electric field, right? हमको पता है इंटेंसिटी क्या है,
पावर अपॉन यूनिट एरिया, ये इक्वल टू होता है एवरेज एनर्जी इनटू स्पीड के साथ। एवरेज एनर्जी इनटू वेलोसिटी जो है दैट इज आल्सो आवर इंटेंसिटी। तो पावर तो P दिया हुआ है, एरिया अगर मैं लूँ इसका, यार ये क्यों आगे पीछे हो रहा है, ओके, पावर तो P दिया हुआ है, एरिया लैम्प है तो इट विल बी लाइक अ स्फेरिकल थिंग, तो एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। एवरेज एनर्जी क्या हो जाता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ पे ई है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू, क्योंकि ये लैम्प है तो ये फोटॉन्स जनरेट करेगा, फोटॉन्स आगे भेजेगा, इसीलिए इसका स्पीड विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से मुझे टोटल मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रूट अंडर ई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट सी। थर्ड ऑप्शन। पोटेंशियल एनर्जी, ओके ये तो रिपीट हुआ था ना 4 times during its cycle. Photon will have less energy if its wavelength will be longer. क्योंकि energy is hc by lambda. Energy is inversely proportional to lambda. I'll go with option 3 here. Thin biconvex lens, refractive index, radius of curvature, potent water, its focal length. Okay, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है ना, लेट्स मेक अ फॉर्मूला 1 by f is equal to mu2 minus mu1 by mu1 into 1 by r1 minus 1 by 2. Using this formula I will get mu2 है मेरा 3 by 2 minus 4 by 3 that divided by 4 by 3 that into 1 by r1, पहला वाला पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव, सो नेट मुझे मिल गया 2 by r, 1 by r plus 1 by r, राइट। So we are 9 minus 8.6 0.4 2 times 2 by r 1 by 4r। f मेरा मिल गया 4r, 4 into r का वैल्यू इज 30 सेंटीमीटर्स, टोटल 120 सेंटीमीटर्स, यहाँ मीटर्स में आया तो 1.2 मीटर्स। फोर्थ ऑप्शन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ब्लड फ्लो का फॉर्मूला हमको पता है A इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, राइट। फ्लो दिया हुआ है हमको कितना 100 cm³ पर सेकेंड, एरिया इज 0.25 मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी हमको निकालना है। तो सेंटीमीटर क्यूब को जब मैं मीटर क्यूब करता हूँ आई विल मल्टीप्लाई विद 10 to the power minus 6 और ये डिवाइड हो जाएगा 0.25 के साथ, तो मेरे पास है 4 into 10 to the power minus 4 आता है which is 0.4 millimeters, sorry, yeah, millimeters per second. Fourth option. A yo-yo is placed on a rough horizontal surface and a constant force less than its weight pulls it vertically. Okay. Due to this friction and movement. Okay. See, जब यहाँ फोर्स ऊपर की तरफ लगता है तो नीचे वाला पॉइंट इट ट्राइज टू रोटेट इन दिस मैनर ना, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब राइट साइड जाना चाहता है तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमको मिल गया लेफ्ट साइड, मूवमेंट किधर हो रहा है along left only ना, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। आई गो विथ दिस, सॉरी फ्रिक्शन लगता है लेफ्ट की तरफ सो इट विल मूव लेफ्ट। ये थर्ड ऑप्शन जो है इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट सो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज रॉन्ग। अगर लेफ्ट की तरफ वो मूव करता है तो फ्रिक्शन विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट साइड। A drop of liquid evaporates by a decrease in its surface energy, alright? So minimum radius drop. Okay. So the decrease in surface energy है that is helping it to vaporize, right? So decrease in surface energy is given by how much? Surface tension into the change in area, delta A. This is the change in surface energy. That same amount of energy will be used in vaporization process. So energy हम area लिखते हैं 4 pi r square, उसका डेल्टा जब लिखूंगा मैं तो it will give me 4 pi into 2r delta r, t multiplied है इसके साथ। Now
एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है तो मास विथ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एल। मास को मैं लिखूंगा कैसा, क्योंकि यहाँ डेंसिटी दिया हुआ है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखता हूँ, और वॉल्यूम को मैं लिखता हूँ एरिया इंटू द लेंथ। लेंथ का जो चेंज हो रहा है ना, मतलब जो रेडियस का जो डिफरेंस है डेल्टा आर, दैट इंटू लेटेंट हीट एल। So this is equal to T upon 4 pi 2 R delta R. Delta R दोनों साइड से कट गया एंड मेरे पास रह गया R का वैल्यू इक्वल टू रो ए एल अपॉन 8 पाई टी। अब यहाँ एरिया अगेन है ना, रो ए एल अपॉन 8 पाई टी एंड एरिया में इससे अगर लिखता हूँ रो 4 पाई आर स्क्वायर एल 8 पाई टी, तो एक आर इधर से कट जाएगा and I will be left with R equal to T upon rho L, 2T upon rho L. Second option. हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इनफिनाइट। हीट कैपेसिटी जिसका ज्यादा होता है, जिस भी सब्सटेंस का ज्यादा होता है, तो उसमें टेम्परेचर चेंज करना काफी मुश्किल होता है। जो बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में वाटर का हीट कैपेसिटी कुछ ज्यादा है, इसीलिए उसको ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। I'll go with option 3. No change in temperature whether heat is taken in or given out. क्योंकि इसका infinity। Next, thin muscular ring. Okay, move कर रहा है ऐसा। Mutually perpendicular, right? So यहाँ ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसका है, सिर्फ रिंग रोटेट कर रहा है, तो आई ओमेगा, right? That is equal to, now सेकेंड केस में जब फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वहां पे रिंग के साथ हमारे ये जो चार स्फीयर्स हैं छोटे छोटे ऑफ मास एंड दे आर आल्सो रोटेटिंग, तो उनका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, राइट? तो आई ओमेगा इक्वल टू, सॉरी दिस इज ओमेगा डैश, आई ओमेगा इक्वल टू आई ओमेगा डैश प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश। तो यहाँ से ओमेगा डैश बन जाता है मेरा आई ओमेगा बाय आई प्लस 4 एम आर स्क्वायर, क्योंकि चार थे हमारे पास स्क्वायर्स। आई का वैल्यू है एम आर स्क्वायर ओमेगा बाय कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल एम आर स्क्वायर सभी कट गए, तो आई एम लेफ्ट विथ कैपिटल एम ओमेगा बाय कैपिटल एम प्लस 4 इंटू स्मॉल एम। ये चौथा ऑप्शन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है एंड देयर करंट्स भी दिया हुआ है, और पूछ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो एन ई बाई एन एच हमको दिया है 7/5 एंड करंट आई ई बाई आई एच दिया है 7/4। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेट करके हमारे पास एक फॉर्मूला है फॉर करंट, आई इक्वल टू एन ए वी डी ई, जहाँ n है this concentration, a is the area, v d is drift velocity, e is the charge। मतलब I is directly proportional to n into v d, right? तो I e by I h equal to n e v d e by n h v d h। हमको v d e by v d h निकालना है। I e by I h multiplied by n h by n e। This is 7/4. This is 5/7. 5/4. Fourth option. And gate is followed by a NOT gate. बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्थ ऑप्शन A डॉट B का ऊपर एक बार लगेगा। With forward bias, see PN जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस होता है तो वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। जब वो कंडक्ट करेगा तो इट विल एक्ट एज ए क्लोज स्विच। जब हम स्विच को क्लोज करते हैं, मतलब हमारे होम अप्लायंसेस में जब हम स्विच ऑन करते हैं, दैट कंडीशन पोटेंशियल एरिया का डिक्रीज होता है। ये तो अभी किया हमने।
ये तो पहले हुआ था। मीटर डिमेंशन और यूनिट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। Diffraction pattern of a single slit. Okay. Difference extreme is 2 times the wavelength. Alright. सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमको पता है कि फॉर मिनिमा के लिए ए साइन थीटा क्या होता है एन लैम्डा, एंड मैक्सिमा के लिए होता है इट इज 2n+1 लैम्डा बाई 2। यही इसका रिवर्स होता है फॉर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो मिनिमा जो थर्ड वाला पॉइंट है 1 2 3 वो है मेरा सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला। वहां से 3 to 4 इट इज द फर्स्ट मिनिमा, राइट। 4 to 4 और 5 का बीच में जो मैक्सिमा है, राइट, दैट इज फर्स्ट मैक्सिमा, एंड फिफ्थ पॉइंट इज द सेकेंड मिनिमा। तो मिनिमा अगर मैं लिखूं एन लैम्डा, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए हो जाएगा लैम्डा, सेकेंड मिनिमा के लिए हो जाएगा 2 लैम्डा। और क्वेश्चन में हमको 2 लैम्डा वाला केस ही पूछा है, so this is option 0.5, option 4, double slit experiment. Second minimum is observed exactly in front of one slit. Okay, that is easier. Alright, minimum बोल रहा है. Here I'll write as delta x is y small d upon capital D ना. Delta x for minimum क्या होता है 2n-1 lambda by 2 y d upon capital D. सेकेंड मिनिमम बोला तो 2 into 2 4 minus 1 3 3 lambda by 2 is y small d upon capital D. लैम्डा बनता है मेरा 2y d by 3 capital D. अब y का वैल्यू कैसे जाने? यहाँ पे जो ये बताया गया है इट इज ऑब्जर्व्ड एक्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, मतलब दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, उसमें एक के सामने है, मतलब बीच से कितना डिस्टेंस हुआ d/2, राइट। तो 2 into d/2 into d by 3d gives me d square upon small d का स्क्वायर into upon 3 into capital D. थर्ड ऑप्शन। ओके, नंबर ऑफ मैक्सिमा डाटा ऑब्टेन्ड, राइट। मैक्सिमा के लिए हमको क्या है एन लैम्डा निकालना है, एन लैम्डा इक्वल टू ए साइन थीटा या डी साइन थीटा जो भी, राइट। n into lambda है 2000 एंगस्ट्रॉम्स, दैट इज इक्वल टू d दिया हुआ है 7000 एंगस्ट्रॉम्स into sin थीटा। तो यहाँ से sin थीटा का वैल्यू आया हमारा 2/7n, राइट। अब sin थीटा जो फंक्शन है उसका वैल्यूज दे लाई बिटवीन -1 to +1, इनके बीच में ही होगा, इनको एक्सीड नहीं करेगा। तो n का वैल्यूज हम ऐसा पुट करेंगे जो माइनस टोटल 2n/7 जो आया है वो टोटल हमको -1 से +1 के बीच में ही रहा है। सो फर्स्ट इफ आई टेक n इक्वल टू 0 दैट इज गुड, होल गुड। n इक्वल टू +1 2/7 देता है विच इज लेस देन 1, -1 भी होता है, देन +2 -2 +3 -3, राइट। लेकिन अगर 4 में पुट करूं यहाँ पे 4 into 2 8/7, ये 1 से एक्सीड कर जाएगा, तो आई हैव टू restrict myself up to n equal to 3 only, plus or minus 3. तो क्या क्या आया 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3, 6 and 1 7, टोटल 7 मैक्सिमम आएंगे हमारे पास। ओके, ये तो अभी किया था हमने ना d²/3d, ये भी हो गया है 0.5। फिर आ गया स्ट्रीम ऑफ डेंसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्ट्रेच अंडर टेंशन। ट्रांसवर्स वेव का पूछ रहा है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होता है √T/μ, वेयर μ इज द मास डेंसिटी, मास बाय लेंथ, राइट। तो T तो दिया हुआ है, बस μ हमको निकालना है। μ इज मास अपॉन लेंथ। मास को मैं लिखता हूँ क्या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन लेंथ हो गया एरिया। तो मेरा म्यू बन गया हाउ मच 7.5 ग्राम्स पर cm³ है। तो उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे ऐसा यूनिट्स में, ग्राम्स के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई किए
एंड cm क्यूब के लिए 10 to the power -6 दैट इनटू एरिया 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर पे करेंगे तो 10 to the power माइनस अगेन, तो दिस इज 0.15 इंटू 10 पावर -3, तो टी हो गया कितना 20 इंटू 10 to the power 3 by 0.5 4 into 365, ये आया हमारा नियरली 116 फर्स्ट ऑप्शन। ओके, रिपीट हो रहा है। टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ डिफरेंट दिस, टेंशन दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ भी इक्वल है 1 ग्राम पर मीटर। अच्छा, फंडामेंटल लॉस, number of beats is nothing but the difference between the frequencies. Frequency for such wires is given by 1 by 12 into root under t by mu. Okay, तो f1 मेरा होगा, मैं पहली स्ट्रिंग का अगर लिखूं 1 by 2 into 51.6 सेंटीमीटर्स, उसको मीटर्स पे करना है, इंटू रूट अंडर 20 बाय म्यू दिया हुआ है 1 ग्राम, उसको किलोग्राम्स पे करेंगे 10 to the power -3 मल्टीप्लाई होगा, राइट। जो भी वैल्यू आया f2 विल बी अगेन सेम 1 by 2 into L 49.1 सेंटीमीटर से मीटर किया, एंड दिस इज हाउ मच 20 into 10 power 3, राइट। तो बस इसको अब सॉल्व करना है हमें, चाहिए थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है। Number of beats is nearly, just solve the number. Yes, here 3 and 4 7. Yes, 7. F1 minus F2 comes out to be 7. Question 192. Two springs A and B are kept identical. Ka is more than Kb. Okay. See, जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो दैट इज नेगेटिव ऑफ स्प्रिंग फोर्स kx, एंड अगेन वर्क डन इज इक्वल टू fx, तो वर्क आता है -kx स्क्वायर, वर्क इज -kx स्क्वायर, तो वर्क डिपेंड्स ऑन -k, तो क्योंकि kb इज लेस वैल्यू, so negative of kb will be more value, right? So wb will be more and wa will be less. First option 193, तो ये तो आया था ना हमारा, हमारा मैक्सिमम 7 आया था, देन आयनाइजेशन एनर्जी, ये कुछ फिफ्थ टाइम रिपीट हो रहा है सेम क्वेश्चन। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव और आईपीस का पावर्स दिया हुआ है, मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है ऑलरेडी। Magnifying power of that telescope is nothing but focal length of objective divided by focal length of eyepiece, FO by FE. FO क्या है 1 by power of O, and that is for FE 1 by power of E. PE है 20 by PO है 0.5, which gives me magnifying power of 40. This telescope has a magnifying power of 40. So I guess यहाँ पे फिजिक्स खत्म होता है, तो फिजिक्स हमने कर लिया है। Now let's look upon biology. Biology I guess थोड़ा इजी है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हमको देखने रहते हैं, 90 क्वेश्चन। So alright, what is common among trypanosoma, noctiluca, monocystis, giardia? Trypanosoma, noctiluca, ये दोनों तो हम, and monocystis, ये तो एनसीईआरटी में गिवन नेम्स हैं फॉर प्रोटिस्टा, so these are all unicellular protists. Giardia is out of NCERT. Next, homothallic and monoecious क्या होता है? Bisexual conditions हैं ये। Homothallic मतलब सेम थैलस में दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स, एंड मोनोएशियस सेम बॉडी में।
क्यूलेक्स मॉस्किटो जब हमको काटता है हमें होता है फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस जिसे कहते हैं. Artificial ecosystems are that are created and maintained by man, correct? Ecosystem made by addition of energy, plant manipulation with a natural balance, okay, correct? और ये उसके examples हैं, croplands, orchards, gardens, aquariums, greenhouse. Yeah, so all of these are correct. Which of the following studied by Mendel in garden B was found to be dominant? Green seed color wrong, yellow was dominant, axial flower position was dominant, green pod color correct, and round seed was dominant. Phylum Mollusca, triploblastic, bilaterally symmetrical, and truly coelomates. To find out the different types of gametes produced by a pea plant, okay, it should be crossed. जब गैमेट्स हमको पता करने होते हैं कि क्या क्या प्रोड्यूस करेगा कोई प्लांट, तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं टेस्ट क्रॉस. एंड इन टेस्ट क्रॉस दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और दैट पर्टिकुलर जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट. रिसेसिव पेरेंट यहाँ पे है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी. तो इससे हमें पता चलता है व्हाट काइंड ऑफ गैमेट्स इट विल प्रोड्यूस. टेस्ट क्रॉस. Dash hormones helps in maintenance of electrolytes. Aldosterone, it helps in maintenance of sodium. Sodium का reabsorption करता है at the beginning of the final stage of mitosis. यहाँ नोट करना, फाइनल स्टेज अब शुरू होने वाला है, तो उस पोजीशन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स रेस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच जाते हैं एंड दे डिकंडेंस. ओके, ये तो ड्यूरिंग द फेज होगा. दिस इज द प्रीवियस फेज, एनाफेज वाला है ये, और ये एट द एंड न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर दे फॉर्म. According to an estimate, direct NCERT statement, 40% in tropics and 1% in temperate. जो forest loss है, क्योंकि tropics is more stable. Which day in normal human menstrual cycle does ellipse surge normally occur? इसका एक ट्रिक है, जो भी नॉर्मल पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, सपोज इन ह्यूमंस वी कंसीडर 28 डेज टू बी नॉर्मल. तो 28 डेज से हमको -14 करना है, तो 14th डे प्रीवियसली होगा. 28 - 14 इज 14th डे. सपोज अगर 30 डेज का देता है साइकिल, तो 30 - 14 16th डे पे होगा एलिप्स सर्ज. अगर 32 देता है तो 18th, ऐसा -14 है हमें. Antiparallel strands in DNA is due to disulfide hydrogen phosphorus हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इज बिटवीन प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स, तो कॉम्प्लीमेंटरिटी आता है इस वजह से, और उसके वजह से पैरेलल नेचर आता है. जिंजर इज अ स्टेम व्हिच कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम रूट, बिकॉज स्टेम और रूट का बेसिक डिफरेंस है कि स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं. The scrotum helps in maintaining the low temperature of testes, 2.25 degrees centigrade temperature lower than the body temperature to facilitate spermatogenesis. यहाँ पे नोट करना spermatogenesis को, कभी कभी लिख देता है spermiogenesis, which is wrong. Right. So we have to be cautious when answering such statement-based questions. Spermatogenesis के लिए 2 to 2.5 degrees less चाहिए. Casparian bands will be occurring in endodermis and exodermis. Casparian strips जिसे कहते हैं, tangential and radial. Reticulate venation is commonly found in the leaves. Okay, reticulate venation commonly found in dicot plants that we know. अब इसमें हमको बस देखना है कि dicot वाला combination कौन कौन सा है. Maize, barley, these are monocots. अब second में we don't know these names. These are like non-NCERT names. थर्ड में देखें अगेन बार्ली इज मोनोकॉट, तो ये नहीं होगा. फोर्थ में अगर देखा जाए तो फ्यूनेरिया तो मॉस है ना, इसमें तो वेनेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता. तो आई एम लेफ्ट विथ ऑप्शन 2. होगा कुछ मैग्नोलियस एंड कैथरांथस. रोज एंड हाइबिस्कस तो हमें पता है. Which of the following hormones is not secreted by hypothalamus? First वाला okay, it is secreted. Oxytocin and antidiuretic hormone, they are
secreted from hypothalamus, yes, they are produced by hypothalamus, but they are stored in posterior pituitary, और posterior pituitary उनको दोबारा secrete करता है. But follicle stimulating hormone, it is primarily by anterior pituitary. Okay, which does not belong to Pteropsida. Pteropsida के हमारे पास तीन है, Pteris, Dryopteris and Adiantum. Selaginella हो गया, इसका Lycopodium, Lycopsida. Selaginella and Lycopodium are from Lycopsida. Alright. Deposition of fatty substance in the lining of arteries, it is atherosclerosis. किसी भी चीज से अगर आर्टरीज का ल्यूमेन कम होता है, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस. नेक्स्ट, रॉन्गली मैच्ड हमें देखना है. IUI, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन. Semen collected from husband or donor is artificially introduced. That is correct. GIFT, gamete intrafallopian transfer. यहाँ पे sperms will be transferred to the fallopian tube, not embryos. तो ये गलत है हमारा. बाकी दूसरा अगर देख लें तो दिस इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, दैट इज करेक्ट. स्पर्म का इंजेक्शन दिया जाता है. एंड दिस इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. जाइगोट एंड एम्ब्रियो दे आर सेकंड वन. Which one of following plants produces vegetatively epiphyllous buds? Epiphyllous buds हमारा है ना, ये ब्रायोफिलम लीफ का मार्जन है उसका. शेयर नहीं हो रहा है. According to Oberlin, primitive atmosphere, it lacked oxygen, and because of that, it was reducing in nature. तो ये ऊपर के दोनों ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ से. पहले अर्थ में ऑक्सीजन नहीं था. Pneumonia is caused by two types of microorganisms. पहला तो है Streptococcus या Diplococcus pneumonia, and second is Haemophilus influenza also causes pneumonia. Influenza तो वो cause करता ही है, साथ में it can cause pneumonia also. Animals that can tolerate narrow range of salinity. Stenohaline, यूरियालाइन होते हैं जो वाइड रेंज करते हैं, और ये एक्सो एंड एंडोहालाइन ऐसा कोई टर्म नहीं है. 24 हो गया. 25th, phosphorus and nitrogen ions generally get depleted in soil because they usually occur as. phosphorus का हमारे पास phosphate ion है, nitrogen का NO3 NO माइनस बहुत सारा आता है. So yeah, they occur as negatively charged ions. तो नेगेटिवली चार्ज आयंस का एक टेंडेंसी होता है कि पॉजिटिव चार्ज को मैं अपने पास ले लूं एंड न्यूट्रल हो जाऊं, इस वजह से वो डिप्लीट हो जाते हैं. राइट. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अकर्स एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है लंग्स लेवल पे. इंटरनल रेस्पिरेशन होता है जहां पे मेटाबॉलिज्म होता है, दैट इज द मेटाबोलाइजिंग टिश्यूज. ये है मेरा सेकेंड ऑप्शन, लंग्स एंड मेटाबोलाइजिंग टिश्यूज. After a sperm has penetrated an ovum in the process of fertilization, entry of further sperms is prevented by. देखो, जो ओवम है, ओवम के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, that is called as, that membrane is called as vitelline membrane, और vitelline space. जब पहला स्पर्म विटेलाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है या उसके साथ कांटेक्ट में आ जाता है, it releases some factors. And that factors get deposited in the vitelline membrane and convert it into a hardened structure कि further कोई और sperm उसे penetrate ना कर पाए. And that hardened membrane is called as fertilization membrane. Right? Fertilization membrane prevent करेगा entry of further sperm. Frugivorous frugivorous birds and mammals in tropical forest. Slope ये तो direct है 1.15, हमें याद रखना है, ये facts हैं ये. इक्विसिटम. इक्विसिटम कौन से क्लास को बिलोंग करता है? इनॉक्सिडा. लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला आएगा. साइलोप्सिडा में साइलोटॉन. टीरोप्सिडा में टेरिस, ड्रायोप्टेरिस एंड एडियांटम. नेक्स्ट,
फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रॉकफोर्ट चीज? रॉकफोर्ट चीज बनाता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम है एक फंगाई। कैमेम्बर्टी चीज भी फंगाई बनाता है, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। जो नॉर्मल चीज है दैट इज बाय सैकेरोमाइसिस। प्लांट्स अडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी। ओके, लो लाइट इंटेंसिटी से का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, रूट सिस्टम के साथ भी कोई लेना देना नहीं है, एंड दिस इज वेरी वेग स्टेटमेंट। ये तो मॉडिफिकेशंस होते हैं ड्यू फॉर अडेप्टिंग टू द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। लार्जर फोटोसिंथेटिक यूनिट हो सकते हैं क्योंकि वहाँ लाइट का इंटेंसिटी कम है, तो अपना वो फोटोसिंथेटिक यूनिट का साइज बड़ा कर लेगा प्लांट, ताकि ज्यादा लाइट कवर कर पाए। नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ रेक्टम इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में ये कॉमन ओपनिंग होता है क्लोए का, जिसमें से उनका एक्सक्रीशन, इजेशन एंड रिप्रोडक्शन, इन तीनों के जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे दे कम आउट थ्रू द कॉमन ओपनिंग। नेक्स्ट, evolutionary important character of Selaginella is it is heterosporous in nature. Heterosporous nature of pteridophytes, it was a precursor to the seed habit. It is evolutionary important. Okay. During photorespiration decarboxylation reaction कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चूज इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट वन क्या है? न्यूक्लियस में आरएनए रह सकता है, यस। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, यस। साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स are a type of cytoskeleton, yes, correct. Protein synthesis, this is done by ribosomes, not lysosomes. Translation process. In most ecosystems, the pyramid of dash is always upright when more producers are present. See, energy हमेशा रहता है ऑलवेज अपराइट। नंबर यहाँ पे बोल दिया कि प्रोड्यूसर्स आर मोर देन द कंज्यूमर्स, यस। सो एज अ रिजल्ट, क्योंकि नंबर ज्यादा है तो उनका बायोमास इट विल आल्सो बी मोर ओनली ना, सो ऑल ऑफ दिस विल बी अपराइट, कोई स्पिंडल शेप नहीं आएगा यहाँ पे। डायरेक्ट एनसीईआरटी का पैराग्राफ है ये। Dash is a couple of layers thick, phallogen is a couple of layers thick, made of narrow, thin-walled and that rectangular shells. It will cut off to both the sides. Outer wala it differentiates into cork, which is also called as phellum. Inner wala it will be secondary cortex, also called as phallodome. और इन तीनों को phallogen, phellum and phallodome, इन तीनों को बोला जाता है peridome. While studying the concept of linkage, Morgan ने क्या क्या पाया था? Morgan found that the genes were linked to X chromosome first. They do not segregate. The genes are linked to one another, and second is most of them are present in X chromosome. Third is parental gene combination is more than non-parental type. This one is wrong. Genes they can segregate independently. अगर ये गलत है तो मेंडल का जो सेकंड लॉ है, law of segregation, that will be wrong, ना? Gene they can segregate independently. ग्लूकोज में पहले एस्चेरिचिया कोलाई को हमने ग्रो किया, देन वी ट्रांसफर टू लैक्टोज। तो अब लैक्टोज आ गया प्रेजेंस पे, तो लैक ऑफ क्रोम विल बी इंड्यूस्ड, स्विच ऑफ नेचर। In a monohybrid cross, 120 plants are obtained. Ratio of homozygous and heterozygous. Okay, monohybrid cross में talking about the genotypes, we have capital T, small t. These two are homozygous, and we have capital T and small t. तो total ratio क्या होता है? 1:1 only ना? दोनों का equal रहता है 60:60. Heterocysts are found in certain Anabina. Nostoc and Anabina, they have heterocysts. System of classification in which a large number of traits are considered, that is the natural system of classification found by Bentham and Hooker. Organisms which obtain energy by oxidation of reduced inorganic compounds, they are chemoautotrophs. During translation process, the ATP molecule is required for. First step of translation होता है charging of tRNA. उसको एक्टिव बनाने के लिए एनर्जी दिया जाता है. Salivary amylase pH 6.8, slightly acidic.
टेम्परेचर डिक्रीजेस तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ज्यादा एसोसिएशन होगा, लेफ्ट की तरफ जा रहा है मतलब ऊंचा हो रहा है, इट विल बी मोर स्टीप. Descending order of percentage propositions. Okay. Neutrophils 60%, lymphocytes 20 to 25%, monocyte 8%, eosinophil 2 to 3, and basophils nearly 1%. Germ pores on pollen grains, they are found on X-sign only. Intine में नहीं होता germ pore. Intine will come out through these pores on X-sign. Cross bridge का binding के लिए calcium is important. Match the following. इंसुलिन पैंक्रियास से सिक्रेट हुआ तो ए का 2, मेलेटोनिन विल बी सिक्रेटेड फ्रॉम पीनियल ग्लैंड बी का 1, एल्डोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स सी का 4, तो या देन एरिथ्रोपोइटिन फ्रॉम किडनीज डी का 5 एंड एचसीजी फ्रॉम प्लेसेंटा ई का 3. फोर्थ ऑप्शन. लीवर वाले क्वेश्चन होंगे. Red oceanic tides, red tide, Borneo of Catenella. Red Sea is by Tridesmium erythraeum. लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है? बोथ एक्स्ट्रासेल्युलर एंड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, डाइजेस्ट करेगा लाइसोसोम. इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है. ब्लड कैंसर इज द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स. जब ल्यूकोसाइट्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज ल्यूकेमिया. Construction of first recombinant DNA emerged with the idea antibiotic resistance. Okay. Native plasmid किसका था? Salmonella typhimurium. डायरेक्ट ये एनसीईआरटी स्टेटमेंट है. गाइनोशियम अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहता है तो बाकी प्लांट बाकी जो फ्लावर का पार्ट्स हैं इट विल बी दे विल बी लोअर टू द गाइनोशियम. दैट इज द प्लांट इज द फ्लावर इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनस. Industrial melanism. Okay, it proves that melanic form of moth has no selective advantage. Nah, this is wrong. They will have some selective advantage. The lighter form has no selective. This is also wrong. Melanism is pollution generated feature. नहीं, जरूरी नहीं है pollution की वजह से ही melanism हो. A true black melanized moth could successfully camouflage themselves from predator. Yes, correct. की वजह से उनको हेल्प हो जाता है छुपने में. Plasmids are autonomously replicating many chromosomes found in. Plasmids will be found in prokaryotes only. Eukaryotes में plasmid का नाम नहीं आएगा. Bacteriophage, it is a virus. तो वायरस में तो chromosomes का सवाल ही पैदा नहीं होता. Leishmania, Paramecium, these two are eukaryotes. रह गया हमारे पास एस्चेरिचिया कोलाई व्हिच इज अ बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट. स्पोरोगोनी ऑफ मलेरियल पैरासाइट अफेक्शन. स्पोरोगोनी मतलब होता है क्या? सेक्सुअल फेज. एसेक्सुअल फेज कौन सा होता है? साइजोगोनी. साइजोगोनी होगा ह्यूमन बॉडी में, स्पोरोगोनी होगा मॉस्किटो के बॉडी में. मॉस्किटो के बॉडी में कहाँ? स्टमक वॉल पे. ओके. अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड ओल्ड फिलोटैक्सी. Alternate phyllotaxy shown by China rose. Opposite, it is shown by Calotropis. So yeah, first option. China rose, Calotropis, and old phyllotaxy to Nerium. Good examples here. Bioluminescence will be well marked in ctenophores. Ctenophora इसमें कौन सा है? Fluorobrachia. Okay, which of the following events occur at a faster rate? Cyclosis, sugar transport, distribution of hormones, transpiration pull. Transpiration pull 100 to 150 मीटर्स तक वो ऊपर ढकेल देता है वाटर एंड मिनरल्स को, इतने फास्ट रेट पे होता है. नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स आर 8 इन प्रोफेज 1. व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज 2? सी, इसको हम ऐसे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को. बाइवेलेंट्स है 8 तो टोटल क्रोमोसोम्स हो गए 16. 16 है क्योंकि प्रोफेज 1 एनाफेज 2 है तो दिस इज ऑब्वियसली मियोसिस. आफ्टर द एंड ऑफ मियोसिस 1 क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. 16 से बन गया कितना? 8. और वही सेम कंटिन्यू करेगा आगे, तो 8 का 8 रहा. Which of the following is non-protein in nature? Ribozyme. Ribozyme is RNA based. 28 is RNA,
60 SRRNA, ये सब वर्नलाइजेशन के रेस्पेक्ट में which is correct? Yes, first one is correct. Quantitative dependence होता है low temperature पे, and it is seen in biennial plants both A and C. Precocious reproductive development जरूरी नहीं है, वर्नलाइजेशन के पहले होगा वो. Mannitol, laminarin and mannitol are stored food for Pheophyce. Pheophyce है यहाँ पे fucus. Cara is chlorophyce and Porphyra and Glacidaria, they are rhodophyce. Anticoagulant hirudin, it is from Brassica napus. Naturally, it is from Hirudinaria. This is by genetic engineering. Brassica napus जो plant है उसमें से आएगा. Unidirectional transmission of nerve impulse is due to this. Neurotransmitters are released by axon endings and not by dendrites. Dendrites will read these neurotransmitters. So that is why there is a direction for the flow. Dioecious condition, ankylostoma, Aedes, and limulus. Yes. बाकी दूसरे जो हैं those are monoecious या bisexual. यहाँ पे हो गया ferritima, this is my earthworm. यहाँ पे hirudinaria, and यहाँ पे fasciola and ocura, ये दोनों. These are bisexual. These all are unisex. First option. Okay. Genetic disorder, males को ज़्यादा होता है, females को कम. So obviously this is X related, X chromosome related, and क्योंकि females में कम हो रहा है, मतलब females they can carry it. So it will be a recessive trait. So recessive trait carried by X chromosome. Y chromosome अगर होता तो females में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. Negatively charged amino acids, जो acidic amino acids होते हैं, those are negatively charged. So glutamic acid. Basic amino acids are positively charged. Pectoral and pelvic girdles, these are from appendicular skeleton. 90 degree from the axis. Nucleosome जो है, it will have both DNA and histones. Biomagnification का मतलब क्या होता है? Concentration बढ़ जाएगा non biodegradable pollutants का. That was easy. Next, in eukaryotes, gene regulation can be done in all except. See, during splicing, yes, it can be regulated. During formation of primary transcript जो है हमारा heteronuclear RNA, at that point also it can be regulated, yes. Translational level पे भी it can be regulated, but during this transport हो रहा है तो वहाँ regulate करने की जरूरत ही नहीं. So option 3. Next, अच्छा order, पहले glycolysis होगा. Glycolysis का जो product था, what was it? Pyruvic acid. Pyruvic acid, it will then enter through the link reaction into this Krebs cycle. And Krebs cycle में हमको मिलेंगे क्या क्या? जो energy rich components हैं, NADH2, FADH2, GTP, they will enter the electron transport chain. So option 3. Red far red light interconversion. Red far red इसके लिए कौन सा है हमारा? Phytochrome 450. अलग अलग होते हैं phytochromes. Okay. This 6 is done. Lantana, Acornia, African catfish, ये सब फॉरेन स्पीसीज हैं जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे. ये इंडिया के इंडिजिनस स्पीसीज नहीं है. So option 4 safe. Okay. 28. Cleavage is found in which of the following? Zygote. Zygote cleavage करते करते it will give a blastocyst stage, और ये blastocyst stage it will be the final stage which undergoes implantation. उसके बाद further cleavage नहीं होता, right? 78 done. Next, mammalian brain differs from amphibian brain. ये important question है. Corpus callosum. Corpus callosum is the feature for mammalian characteristic. Right? सिर्फ mammals के पास है corpus callosum और किसी के पास.
In which of the following crypts of liver cone are present? Small intestine. Small intestine. Green muffler technique. It was for noise pollution. Question. Yeah. Which one of the following adaptation is associated with mangrove plants? Okay, associated with, na, yeah. So this minimizing water loss. First thing about mangrove plant is जिस soil पे वो है, that is very saline in nature. Salt quantity it is very much. So salt का tendency क्या होता है कि it will remove water from any substance. तो water loss को ये minimize करते हैं. And second है salty conditions में सांस लेना मुश्किल होता है. Aeration, respiration is difficult. तो इनको एक और adaptation के लिए जाना पड़ता है, which is pneumatophores. Pneumatophores are the roots which grow outwards in the ground. वो roots बाहर आते हैं and they help in respiration. मैंग्रोव प्लांट के लिए ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. तीनों जर्मिनल लेयर से कौन सा टिश्यू बन सकता है? एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू हर वो चीज एपिथेलियल टिश्यू है जो किसी सराउंडिंग को फेस करती है. सबसे पहले जो फेस करती है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो या इंटरनल एनवायरनमेंट, कहीं भी अगर पहला जो टिश्यू आपको दिखता है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. टपेटल सेल्स ऑफ स्टेमेन्स, ये याद रखना पड़ेगा. इट इज पॉलीप्लॉइड एंड मल्टीन्यूक्लिएट. टपेटल सेल्स दे हेल्प इन नरिशमेंट. सेल्फ-फर्टिलाइजिंग ट्राई-हाइब्रिड प्लांट्स. ओके, ट्राई-हाइब्रिड है तो नंबर ऑफ गैमेट्स वी कैन यूज द फॉर्मूला 2 to the power n. यहाँ n equal to 3. 2 का पावर 3 8. 8 different gametes. 8 different gametes they will self cross. So 8 into 8 64. 64 zygotes will be formed and 8 different gametes will be formed. Aphids, ये तो एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में. पूसा गौरव is effective against aphids. Free living soil bacterium capable of nitrogen fixation. Azotobacter. Rhizobium is symbiotic. वो एसोसिएट होने के बाद कर पाएगा. Free living condition में Azotobacter करता है. Anabaena, they do it through heterocyst, but they are not free living. Streptococcus नहीं करता. Which of the following features is common between birds and mammals? क्या है common? Homeotherms and 4-chambered heart. This is common. Which of the following is a pair of analogous organs? Analogous organs वो होते हैं जो similar function करते हैं लेकिन उनका origin अलग-अलग होता है. Right. And that will be this contractile vacuole. नीचे के जो हैं these are homologous organs. इनका origin एक ही है लेकिन functions अलग-अलग हैं. Contractile vacuole in amoeba and uriniferous tubule in frog. Origin अलग है, very different. Frog is chordate, amoeba is this primitive organism, or I will say protista. So origin it is very different, but function is same. Excretion का function है दोनों का. Okay. Wind pollinated flowers. Wind pollination में bright color की जरूरत नहीं है. Bright color is for insects. Large number of this. See, nectar, ये सब and sticky pollens. Nectar, bright color, sticky pollens. This is required for insect pollination. Wind pollination में dry होना चाहिए pollen grain, छोटा होना चाहिए ताकि easily उड़ जाए. Second option. I guess we are done with biology here. Next, chemistry. Sodium tertiary butoxide. अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो कार्बन है, उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं एंड देन ONA. अब इन तीनों में जो ऊपर के दो हैं इथाइल ब्रोमाइड एंड दिस सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इन दोनों में स्टेरिक फैक्टर आएगा लेकिन इसके साथ स्टेरिक फैक्टर नहीं आएगा एंड इट विल गिव मी एन ईथर. राइट, मिथाइल tertiary butyl ether ये आएगा.
बाकी ऊपर के दोनों के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, इस वजह से इनके साथ रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, ग्लाइकोल इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। डेट्रॉन का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थैलिक एसिड। सो ग्लाइकोल इज देयर, बाकी दोनों में ग्लाइकोल काम नहीं है। नेक्स्ट, सो ये सॉल्व करते हैं। 2 moles of non-volatile solute added to 1 kg of water. Okay, and freezing coefficient दिया हुआ है 2, mass at alright. हमको फॉर्मूला पता है डेल्टा टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू द कोएफिशिएंट के एफ। फ्रीजिंग पॉइंट इज, जो डिफरेंस है कितना, 0 से -8 डिग्रीज में आ रहा है, तो इट इज 8, दैट इज इक्वल टू मोलालिटी कितना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जो हमें नहीं पता, दैट मल्टीप्लाइड बाय के का वैल्यू है 2। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे मिला हाफ kg या 500 ग्राम, मतलब 500 ग्राम सॉल्वेंट के रूप में है, तो रिमेनिंग जो 500 है दैट सेपरेट्स एज आइस। XCF2 on alkaline hydrolysis, it will give me xenon plus HF, hydrogen fluoride plus oxygen, xenon there, and ये ऊपर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं they will be from XCF4 and XCF। प्रोटीन्स विद प्रोस्थेटिक ग्रुप, इन्हें कहा जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, जो दो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस मिलके रहते हैं, एक कॉन्जुगेशन में रहते हैं, सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। नेक्स्ट 96, okay, so this reaction, all right, okay, dilute H2SO4 and heat, this will cause dehydration reaction, H2O निकलेगा, तो फर्स्ट इज OH माइनस, तो यहाँ से निकल गया, तो इस पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ कैटायन, उस कैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या है, वो सेकेंडरी कैटायन है। अगर यहाँ एक रीअरेंजमेंट होता है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, दिस विल गिव मी टर्शियरी कैटायन, ज्यादा स्टेबल, तो रीअरेंजमेंट हुआ और यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट। तो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट रीअरेंजमेंट टू stable product. Okay, as per theory, HOH bond angle is this much, FOF bond angle will be, okay. See, यहाँ we have to consider the shapes. Shape कैसा है, OH, right? उसका दो लोन पेयर्स हैं ऊपर, जो डाइपोल मोमेंट है इट इज टूवर्ड्स ऑक्सीजन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन दैट बॉन्ड दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेंटर पे है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रॉन क्राउड बढ़ रहा है, ओके। बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, रिपल्शन भी बढ़ेगा, उसमें से एंगल भी बढ़ेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट F2O, OFO जो है, सॉरी FOF, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन will tend to attract the electrons in that bonding pair towards itself, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नाउ इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही कम है तो रिपल्शन भी कम होगा, और क्योंकि रिपल्शन कम होगा तो जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल दैट विल आल्सो बी लेस, so this angle will be less than 105. Next, which of the following does not turn Schiff's reagent to pink? Okay, Schiff's reagent रिएक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स के साथ, या उन जो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एक्सेप्शन है फॉर्मिक एसिड का, वहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और दूसरों के साथ नहीं, ईस्टर, ईथर, एसिड्स एक्सेप्ट फॉर फॉर्मिक एसिड कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। Which of the following compounds undergoes E2 reactions, elimination reaction with maximum rate? First thing about elimination reaction, जो negative species है यहाँ पे, अगर उसका साइज बड़ा है तो वो जल्दी निकल जाने को ट्राई करेगा। इन चारों में अगर हम देखें देन आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बड़ा कौन है, आयोडीन, राइट, आयोडीन बड़ा है इसीलिए वो निकल जाने को ट्राई करेगा, तो ये दोनों ऑप्शंस तो हट गए पहले।
अब इन दोनों में देखें तो दिस इज अ प्राइमरी थिंग CH2 वाला, एंड यहाँ पे क्या है टर्शियरी, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। अगर आयोडीन निकलता है वहां से तो इस कार्बन पे, इस सेकंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, which will be more compensated by these methyl and ethyl groups rather than here. प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा रहेगा। ऑप्शन 4। ओके, ये स्पीसीज है हमारे पास। यहाँ पे कॉपर इज इन द स्टेट +2 ऑक्सीडेशन। तो +2 कॉपर क्या होता है 4s1 3d9, सॉरी 3d10, 4s1 3d10, +2 स्टेट में क्या हो गया 3d9, तो 3d9 4s0 4p है हमारे पास। अब अगर देखें 3d एंड 4p में, तो सॉरी उसके पहले हम ये देख लेते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। 3d9 है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, तो उस वजह से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है √n into n+2 बोर मैग्नेटम्स, 1 into 1+2 2 √2 सॉरी √3, 1 into 1+2 3, √3 का वैल्यू है 1.73। नाउ टॉकिंग अबाउट द शेप, 3d ऑर्बिटल है हमारे पास एंड 4p ऑर्बिटल है। n+l रूल के हिसाब से 3d का क्या होगा 3 + 2 5 एंड 4p का क्या है 4 + 1 5। दे बोथ आर नियरली सिमिलर और पास है एनर्जी में, तो उनके बीच में एक्सचेंज हो सकता है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन में उठा के 4p के लास्ट वाले ऑर्बिटल में भी रख दूं py या px पे, तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए बच गया क्या dsp2, 2 p ऑर्बिटल्स s and d, dsp2, so that will give me square planar 1.73 and square planar geometry. Okay, now we'll try it here. HNO3 plus H2S, it gives us NO, H2O and sulfur. यहाँ पे नाइट्रोजन फर्स्ट इट इज एट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाउ बिकम्स +2, तो यहाँ से यहाँ रिडक्शन हुआ कितने से 3। सेकेंड, यहाँ पे सल्फर इज एट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन हुआ कितने से 2 and 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो x becomes 2, y becomes 3, a becomes 2, b देखते हैं, b जब ये इक्वेशन सॉल्व किया जाएगा तो 2 3 2 4। ऑलराइट, एमीन डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट और एमीन के बीच में जब रिएक्शन होता है तो हमको नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, तो ट्राईइथाइल एमाइन जो है उसमें नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, that nitrogen is only associated with 3 ethyl groups C2H5, so it will not react with Hinsberg reagent. Next, alright, this electrolysis of acetate solution produces this, what was it, temperature, pressure, current. Okay, current दिया हुआ है मुझे and time दिया हुआ है। From this current and time, first I will have to find the charge. The charge बन जाएगा कितना 0.5 into 7 hours converted to minutes 60, converted to seconds 60. So this gives me 12,600 coulombs. Alright, इतना कूलम चार्ज है, कितने मोल्स, how much mole of charge is that? I will divide it with 96500 and it gives me nearly 0.13 moles. Okay, 0.13 moles of charge is there. Now यहाँ दिया है again 82% efficient. So as it is 82% efficient, तो charge will be 0.13 आया था, 0.13 into 82/100 and I get it 0.11. Yeah, okay. अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है हमारे लिए। अगर यहाँ देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन का चाहिए, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन से 1 C2H6 आता है, 1 इथेन मोल आता है,
1 mole of ethane, sorry. Then 0.11 mole से आएगा 0.05 moles. Now we will use PV equal to nRT, V equal to nRT by P. n आ गया हमारे पास 0.05. R का वैल्यू we will put 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में करना है क्योंकि. Then temperature is 27 degrees centigrade, so that is 300 kelvins. Into pressure will be 76 by 74 atmospheres. क्योंकि यहाँ 760 mmHg is 1 atm, right? So 740 mmHg will be 74 by 76 atms. So after solving, we'll get nearly 1.34 or 1.35 liters. Third option. Okay, here. NaBH4. Carboxylic acid. It is undergoing reduction reaction. NaBH4 water reduction होगा यहाँ पे. Oxygen निकलेगा. तो first यहाँ से तो एक hydrogen निकला. That will take out this acetone का oxygen. तो ये यहाँ से ऐसा एक ring बनाएगा. Right? And that ring, let's see, we will have 2 oxygens only. ये तो 3. How many carbons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 carbon ring with 2 oxygens in it. Option 1. Option 1. Next. Here. C2O4, okay, correct answer. C2O4 2 minus. 2x minus 8 equal to minus 2. So x becomes plus 3. तो यहाँ पे कार्बन है plus 3, यहाँ पे है plus 4. This is oxidation. यहाँ पे plus 6 से plus 4 होता है reduction. This is plus 6 से plus 7 oxidation. This is reduction. 1 and 3 are oxidations. 2 and 4 are reduction. Okay. 1 and 3 are oxidation. 2 and 4 are reduction. Next, for reversible process, total change in entropy of universe. Entropy of universe remains constant. It is 0. उस particular observable जो system है जिसको हम observe कर रहे हैं उसमें change हो सकता है, लेकिन universe में it will be same. Alright, here end product. See, H3O plus है मतलब H2O and H plus acidic hydrolysis कर रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ से CH3O CH3 निकल जाएगा, एक ईथर मिल गया हमको. और यहाँ से एक हमको ये जो H plus था यहाँ, it will give me this क्या कहते हैं इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. So I will have only one oxygen double bond here. Hexagon वाला रिंग रहेगा and double bond oxygen. Yes. Option 3. Yes. Acidic hydrolysis. एक ether and one carboxylic acid. It will come out. Okay. 75% complete होने के लिए 32 minutes लगता है and then 50% के लिए how much? So we have this formula for first order reaction. What is that? Time period T equal to 2.303 upon K log of initial amount divided by final amount left. Right. From that अगर हम इसे solve करते हैं तो K का वैल्यू आता है हमारे पास 2 into 0.693 upon 32. And the question is asking for T half life पूछ रहा है, which is 0.693 upon K. So we'll get 16 minutes. Yes. Good option. Okay, incorrect statement. Incorrect statement here. HNO2 can act as both reducing and oxidizing agent. यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 1 minus 4 minus 3 plus 3 plus 3. So yes, it can act as reducing and oxidizing agent both. +1 तक जा सकता है and +5 तक. And
यहाँ +5 oxidation state है, so it will only act as oxidizing agent. So option 1 is correct. Second, phosphorus varies from -3 to +5. Yes, correct. Third, reaction between NaOH and H2SO4 is a redox reaction. No, it is neutralization reaction between a base and an acid. It is neutralization reaction. And fourth option is correct. Oxidation number positive, negative, fractional कुछ भी हो सकता है. Atomic gas belonging to group 15 combines with, okay, fairly stable. Alright, this try. Okay, so this is NF3. NF3 is very stable. ज़्यादा react नहीं करता है. Next, correct order of rate of alkaline hydrolysis of esters. Alkaline hydrolysis, again it is same. See, CH3COO. इतना, this is common in all of them. Remaining क्या है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है. As the chain length increases, the steric factor again comes into action and it will interfere with our process. जो भी reaction होने वाला है उसमें वो थोड़ा सा रुकावट पैदा करेगा. So that is why R1 will be more than R2 than R3. First option. Height of HCP unit cell is this much. The volume of unit cell. Okay. So this question. It is like very complex calculation. Volume of HCP. Volume can be given by area of base into height. Area into height. Okay. So area for a hexagon we can write it as 6√3 r square, where r is the एक साइड का वैल्यू है r. Okay, 6√3 r square into height. Height I will write as 4r into 2√2/3. Okay, 4r into √2/3 का वैल्यू दिया हुआ है 5.715. From that I will find r. R is equal to 5.715 by 4 into √3/2. Okay. अब वॉल्यूम में डायरेक्ट पुट कर देंगे. एरिया ऑफ बेस हो गया 6√3 इंटू आर का स्क्वायर, आर जो भी वैल्यू आया उसका स्क्वायर, इंटू हाइट इज 5.715. Okay. This gives me nearly 181.8, nearly 182. Second option. Complex calculation है, yes. Base area of base is 6√3 r square and height is 4r√2/3. Next question. Magnetic moment of x3 plus ion is this much. Alright. So magnetic moment is again given by n in √n into n plus 2. This is given as 2√6. So n into n plus 2 becomes 4 into 6. So yes, दिख रहा है n का वैल्यू है 4. मतलब there are 4 unpaired electrons in 3D orbital in x3 plus state. अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन जो निकाले गए थे मैं दोबारा डाल दूं तो 5 हो जाएगा d5 and h2. 3d5 4h2 manganese 25. Atomic number will be 25. 4h2 3d5. Migration of positively charged colloidal particles under electric field. This is called as cataphoresis. Maximum number of electrons that have principal quantum number 3 and spin quantum number -1. Alright. Principal quantum number 3, 3s, 3p, 3d. s में 1 ऑर्बिटल 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उनमें से एक हो गया -1/2 वाला. p में 6 रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 होंगे -1/2 वाले. And d में we have 10 electrons. Out of them 5 will have spin number -1. So 5, 3, 8 and 1, 9. Okay. Alright, this HNO2 plus H2SO3 plus H2O gives me NH2OH plus H2SO4. ये इक्वेशन है. NH2OH आएगा and H2SO4. एंड सल्फ्यूरिक एसिड का शेप कैसा है? टेट्राहेड्रल इन शेप. दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड 2 OH बॉन्ड्स. ओके.
Next, oxygen bond dissociation energies. Okay. Peroxide, it is OH, single bond OH, very easy to break, so I will go with option 1 and 2 here. Second is oxygen and ozone. ऑक्सीजन के बीच में है डबल बॉन्ड एंड ओजोन है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड. एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा विच इज दैट रेजोनेंस हाइब्रिड का जो बॉन्ड है दैट विल बी इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इंटरमीडिएट रहेगा. सो इट विल बी वीकर देन ए प्योर डबल बॉन्ड. ऑप्शन 2. प्योर डबल बॉन्ड इज नॉट मोर स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अदर टू. NO2 is 50% of total volume and equilibrium set of percentage dissociation. Alright. Let us take initially 100 volume, 100 unit volume of N2O4. So at initially this was 100, this is 0. Now this was 100 minus x, this is 2x. Okay. So total volume we have 100 minus x plus 2x, that is 100 plus x. Given is 2x is half of this total value. 2x is half of 100 plus x. तो यहाँ से x का वैल्यू मिलता है मुझे 100/3, 100 by 3, right? So that is the amount which is dissociating x, 100 by 3. अगर percentage निकालें तो 100 by 3 into 100 by 3 is the dissociating amount. Initially is 100 multiplied by 100. So 33.33%. Right. Rock salt structure is face center cube, FCC. और FCC के लिए क्या होता है? Edge length A is equal to 2 times of the addition of radius of cation and anion, 2RC plus 2RA. So simply values put करें. A is given 400 picometers. Cation का radius is given 80 picometers. So anion will be 400 minus 160 by 2, which is 240 by 2, 120 picometers. Okay. What is the chief constituent of Pyrex glass? See, glass है तो sand होगा ही, तो SiO2 तो होगा ही. Glass is made out of sand. Yeah. Unknown gas having density and pressure. Root mean square and most probable velocity for ratio. Alright, see. RMS velocity is root under 3 RT by N. Mass को I am writing density into volume, right? So D into V1 and RT by V is pressure. So I get it root under 3P by D. Similarly, most probable velocity का I will get it as root under 2P by D. इन दोनों का ratio P and D are constants, so it will be root under 3 by 2. Root under 3 by 2, which is nearly 1 point something. Wait, 1.22. Okay. हाँ, बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? बेसिक कैरेक्टर कब बढ़ेगा? जब एमीन वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा. दैट विल इंक्रीज इट्स बेसिक. फर्स्ट 4 और 5 को जब हम देखेंगे तो फिफ्थ वन इज एट द पैरा पोजीशन. इसका इफेक्ट ज्यादा रहता है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट भी है इसका. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑन दिस नाइट्रोजन डिक्रीजेस. ओके, तो 5 का इट विल बी लीस्ट. थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट फोर्थ वाला भी है सिमिलर, तो यस. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट 1, 2 एंड 3. सेकेंड का इट इज फर्स्ट एंड थर्ड का, सॉरी फर्स्ट वाला तो इट इज इन रेजोनेंस. सो 3 इज हाईएस्ट. नेक्स्ट इज 2, क्योंकि CH3 molecule will be giving plus I effect. 3, 2, 1, 4, 5. Yes.
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना था बस वहाँ पे. All right. For this reaction up to what temperature? It is the forward reaction is spontaneous. Spontaneous के लिए Gibbs free energy should be negative. Gibbs free energy is delta H minus T delta S. It should be less than 0. So delta H should be less than T delta S. Or delta H by delta S should be less than temperature. Right. तो यहाँ से हमें आया डेल्टा एच बाई डेल्टा एच का वैल्यू नियरली 945 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट इज द लीस्ट कंडीशन. उससे ज्यादा ही होना है टेम्परेचर 946. अप टू दैट इट विल वर्क. अगर और कम होता है टेम्परेचर देन इट वोंट वर्क. 945 आता है द रिएक्शन विल स्टॉप. Which of the following carbohydrate is reducing sugar? All of them. Only sucrose is non-reducing in nature. Remaining all reducing. Yeah. In propyl fluoride reacts with sodium metal in dry ether. This is Forge reaction. Coupling होगा. दो propyl groups they will join together to give me n hexane 336 6 carbons. Next, hydrogen combines directly hydrogen combine करता है कैल्शियम के साथ to कैल्शियम कार्बन CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड. और इन मेटल्स के साथ जब ये हाइड्रोजन कंबाइन करेगा इट विल रिक्वायर एन इलेक्ट्रोड. एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड लाइक प्लैटिनम और पैलेडियम रिक्वायर करता है एंड इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी टू रिएक्ट. कैल्शियम के साथ डायरेक्ट कंबाइन हो जाता है. ये तो देख लिया ऑलरेडी. ऑल ऑफ देम आर रिड्यूसिंग. Okay. Stability order. Stability. Most stable is 1. दिख रहा है ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव कैटायन है. ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दैट इज इन रेजोनेंस प्लस दीज मिथाइल ग्रुप्स विल हैव प्लस आई इफेक्ट. ओके. सेकंड विल बी दिस थर्ड वाला. यहाँ पे सिर्फ यहाँ तो टर्शियरी कैटायन था, यहाँ पे सेकेंडरी कैटायन. सो 1 3 देन 2 then 4. 1 3 2 4 same resonance and plus I effect देखना था आपको. Okay. Log x by m adsorption very easy. Slope है 1 by n. Okay. All right. KSP का वैल्यू दिया हुआ है, PV पूछता है. Okay. x to the power x into y to the power y into solubility power x plus y, that is KSP. X is 1, y is 2, so I will have 4 into s cube equal to this value. So s cube is equal to 1.8 into 10 to the power minus 4 divided by 4, which gives me 0.45 into 10 to the power minus 4. S cube is 0.45 into 10 to the power minus 4. So s will be the cube root of that first option, 0.45 into 10 to the power minus 4 का cube root. All right. Most reactive aryl halide, most reactive fluoride. Fluoride सबसे ज़्यादा react करता है. Okay. This reaction is similar to the HCHO वाला. This is deuterium. It's 2 times of HCHO. जब alkaline hydrolysis होता है then it gives me formic acid and methyl alcohol. So in this reaction it will give me formic acid होता है क्या HCOOH, so it will give me DCOOD या DCOO minus and जो acid methyl alcohol जो आता है methanol, in that place I will have CD3OH. 4. Number of oxygen atoms. The 4.4 grams is 4.4 by 44. 1 by 10, 0.1 moles of carbon dioxide. 0.1 moles of carbon dioxide will have 2 Na into 0.1 oxygen atoms. So that gives me 1.2 into 10 to the power 23 number of oxygen atoms.
पहले मोल्स निकाले हमने, उसके बाद ऑक्सीजन निकाले। ओके, for nucleophilic addition reaction, the ring should be electron deficient, right? So in that case, second option, it is the maximum electron deficient, क्योंकि NO2 है। Then फर्स्ट वाला आएगा क्योंकि क्लोरीन का एक माइनस आई इफेक्ट भी होता है। ओके, उसके बाद आएगा फोर्थ एंड देन थर्ड, क्योंकि थर्ड में सॉरी थर्ड देन फोर्थ, 2 1 3 4, थर्ड में ये भी देता है ना इलेक्ट्रॉन, CH3 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस तरह। तो 2 1 3 4 है कुछ, 2 1 4 3, ओके सॉरी माय बैड। 2 इज हाईएस्ट बिकॉज NO2 ग्रुप का मैक्सिमम माइनस आर इफेक्ट होता है। Cl यहाँ पे क्लोरीन दिखाएगा माइनस आई इफेक्ट एंड इट विल ड्रैग आउट द इलेक्ट्रॉन। देन फोर्थ वन इज ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन का जब रेजोनेंस में जाएगा तो क्लोरीन विल बी सॉरी मिथाइल विल बी कॉम्पनसेटिंग दैट, यहाँ पे वो चीज नहीं हो रहा है। सो 2 1 4 3, यस ऑलराइट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इज स्ट्रक्चर के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो कितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ ClO2 माइनस। तो Cl है, एक ऑक्सीजन के साथ तो उसने डबल बॉन्ड बना रखा है, बट दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक ही बॉन्ड है, दैट इज व्हाई दैट ऑक्सीजन इज हैविंग माइनस चार्ज। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जब जिस ऑक्सीजन के साथ इसने डबल बॉन्ड बनाया था अब उसके साथ सिंगल बनाएगा, जिसके साथ नहीं था उसके साथ डबल बॉन्ड। सो 2 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। अब अगर मैं ऑक्सीजन को नंबर करूं 1 and 2, इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन नंबर 1, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में इट इज हैविंग टोटल ऑफ 3 बॉन्ड्स, एक में डबल बॉन्ड है, एक में सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स। एंड कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं उसके? 2। सो बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स 3/2। ओके, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इसीलिए हम पहले बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स टोटल नंबर ऑफ bonds one atom can have in all the possible structures divided by the number of all possible structures. So ऐसा करते ही for ClO minus we get bond order is 1, ClO2 minus I will get bond order is 1.5, ClO3 minus bond order will be 1.66 and ClO4 minus bond order is 1.75. So sequentially bond order is increasing, that is means bond length will be decreasing. तो सबसे ज्यादा bond length will be ClO minus, then O2 minus, O3 minus and O4 minus. Second option. Okay. Bond length is inversely proportional to bond order. So we have attempted all the questions here, discussed all the questions. I will submit it. Thank you. Yeah. Incorrect answers 4. Okay, let us just check the incorrect answers. Which were those? देखते हैं क्या गलती किया हमने उसमें, डिस्कस कर लेते हैं. Alright. This porogony of malarial parasite. This happens in stomach wall of mosquito only. Yeah. I guess there is something with the key here. मस्कीटो के स्टमक वॉल में ही होता है पोरोगनी. सैलिवरी ग्लैंड से कुछ लेना देना नहीं है, वहां से इंजेक्शन होता है टू द ह्यूमन बॉडी एंड अगेन दे आर सक्ड आउट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. आरबीसी ऑफ मैन एंड लिवर ऑफ मैन में साइजोगोनी होता है. यस, ओके. करेक्ट अबाउट वर्नलाइजेशन. Correct option is 3. It is in bilingual. Correct option 3 only. But flowering is only quantitatively dependent on low temperatures. Yes, qualitative dependence तो नहीं रहता temperature को. Oh, only. Alright. Flowering is also dependent, quantitatively dependent. सिर्फ for this vernalization
जो plants, the plants which show vernalization, for them flowering is quantitatively dependent on low temperature, but for normal plants it is not dependent. So here we made a mistake, हमने इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. I'm sorry about that. And कौन सा गलत हुआ? Chemistry, okay, it is good. Physics, what happened? Infinitely long, okay. Lambda by 2 pi epsilon naught ln r by 2r minus 2. क्या नेगेटिव भी तो आएगा? Yes, नेगेटिव भी आएगा ये. This is also key mistake. And gate is followed by not gate. Boolean expression, yes, this is correct option only. A dot B is for A and B and uska not. So only one we made mistake, remaining are. I'm confident with my answers. Thank you.